أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما صدق الله العظيم. يسألك سأل يسأل سوال کرتے ہیں کا آپ سے، یسألو کا سوال کرتے ہیں آپ سے، کون؟ سبجیکٹ اس کا آگے آ رہا ہے، فاعل جو ہے اہل الکتاب، اہل کتاب، اہل کتاب جو ہے وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں ان تنزل، کہ نازل کریں آپ، ان تنزل نازل کریں آپ، اتاریں آپ، علیہم ان پر، کتاباً کوئی کتاب، من السماء آسمان سے، فقد سألوا تحقیق انہوں نے سوال کیا، موسیٰ علیہ السلام سے، انہوں نے مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر زیادہ بڑا، اکبر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اللہ اکبر، زیادہ بڑا، من ذالک اس سے، یعنی جو آپ سے مطالبہ کر رہی ہیں اہل کتاب، اس سے بھی زیادہ انہوں نے بڑا مطالبہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، فقالو کیا مطالبہ تھا؟ تو انہوں نے کہا تھا، فقالو تو انہوں نے کہا تھا، ارینا، ارا یوری اراءتن دکھانا، یہ ایک لفظ ہے اری، دکھا دیجئے نا ہمیں اللہ تعالی، ارینا ہمیں دکھلا دیجئے اللہ تعالی، جہرتن کھلی آنکھوں سے، ویسے یہ جہر کا معنی ہوتا ہے ظاہر، اونچی آواز، تو جہرتن کا معنی جو آنکھوں سے نظر آیا، یعنی ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی یہ
پہلے پارے میں اور اسی طرح 9ویں پارے میں مزید تفصیلات ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے تھے تو انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اس وقت تک ہم ایمان نہیں لے کے آئیں گے جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں نہ کہہ دیں کہ یہ میری کتاب ہے، میں نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی ہے، آپ اس پہ ایمان لاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 70 افراد کو منتخب کیا، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، تو کوہ طور لے کے گئے، وہاں پہ ان کے سامنے بات ہوئی، تو پھر انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ تو یہی بات کہہ رہے ہیں، فقالوا، تو انہوں نے کہا تھا، مطالبہ کیا تھا، ہمیں دکھلا دیجیے اللہ تعالیٰ جہرتاً کھلی آنکھوں سے۔ فاخذتهم، تو ف کا معنی کریں گے تو، اخذت پکڑ لیا، ہم انہیں، الصاعقۃ، صاعقہ بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں، جو بجلی کی کڑک کی آواز ہوتی ہے اسے صاعقہ بولتے ہیں۔ تو ان کو بجلی کے کڑکے نے آپ پکڑا، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا، پھر اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، العجل، بچڑے کو، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے اس کے بعد بنا لیا تھا بچڑے کو معبود، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتہم، جو آیا، ہم، ان کے پاس، البینات، واضح نشانیاں، کھلی کھلی نشانیاں، فعفونا، تو عفونا، ہم نے معاف کیا، عن ذالک، اس بات کو بھی، ہم نے درگزر کیا، عن ذالک، اس سے بھی، وآتینا، اور ہم نے دیا، موسیٰ علیہ السلام کو، سلطان مبینہ، سلطان اقتدار، مبینہ واضح، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا واضح۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اے پیغمبر، اہل کتاب تم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ان پہ آسمان سے کوئی کتاب نازل کراؤ، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، یہ لوگ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ فقالوا ارنا اللہ جہرا، چنانچہ انہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کھلی آنکھوں سے دکھاؤ۔ فأخذتهم الصاعقہ بظلمہم، تو ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی ظلم کی وجہ سے ان کو بجلی کے کڑکے نے آپ پکڑا تھا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر ان کے بعد جو کھلی کھلی نشانیاں آئی، ان کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ فعفونا عن ذلک، تو ہم نے معاف کیا، درگزر کیا اس سے بھی۔ وآتینا موسیٰ سلطان مبینہ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح اقتدار عطا کیا۔ ورفعنا، اور رفعنا، ہم نے بلند کیا، فوقہم، ان کے اوپر، الطور، کوہ طور کو، بمیثاقہم، ان کے عہد کی وجہ سے، وقلنا، اور ہم نے کہا، لہم، ان سے،
उदखुलू, तुम दाखिल हो जाओ, अलबाबा, दरवाजे में, सुज्जदन, सजदा करते हुए, सुज्जदन, सजदा करते हुए, वकुलना, और हमने कहा, लहुम, उनसे, ला तादू, ज्यादती ना करना, ज्यादती ना करना, ला तादू यानी हद से मत गुजरना, इस सबती, हफ्ते के दिन में, स्नेचर जो है हफ्ते को कहते हैं, यानी हफ्ते के दिन के बारे में ज्यादती मत करना, वाखजना, और हमने लिया, मिनहुम, उनसे, मीसाकन, आहद, गलीजा, सख्त, यानी पक्का आहद, सख्त आहद से मुराद पक्का आहद, गलीज का माना वैसे होता है सख्त। और रफ़अना फ़ौक़हुम तूर बिमीसाक़िहिम, कि हमने कोहिनूर को उन पे बुलंद करके उनसे आहद लिया था। वक़ुलना लहुम उदख़ुलुल बाब सुज्जदा, और हमने उनसे कहा था कि शहर के दरवाजे में झुके हुए सरों के साथ दाखिल होना। वक़ुलना लहुम ला तादू फ़िस सब्त, और हमने उनसे कहा था कि हफ्ते के दिन के बारे में हद से ना गुजरना। वअख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा, और हमने उनसे बहुत पक्का आहद लिया था। फबिमा नक़ज़िहिम, नक़ज़ का माना होता है तोड़ना, नक़ज़ का माना क्या होता है? तोड़ना। फबिमा, फबिमा नक़ज़िहिम, बस उनके तोड़ने की वजह से, मीसाक़हुम, अपने आहद को, बस उनके तोड़ने की वजह से अपने आहद को, वकुफ्रिहिम, और इनकार करने की वजह से, उनके इनकार करने की वजह से, आयातिल्लाह, अल्लाह ताला की आयतों का, वक़त्लिहिम, और उनके कत्ल करने की वजह से। इन सब का बीमा के साथ ताल्लुक है। अल अंबिया, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को बिगैर हक़्क़िन, ना हक़, वक़ौलिहिम, और उनका कहना, क़ुलूबुना, के हमारे दिलों पर, गुल्फ़ुन, ग़िलाफ़ चढ़ा हुआ है। जैसे कुरान मजीद पे ग़िलाफ़ जो है वो चढ़ाते हैं हम। तो क्या तर्जुमा हुआ? फबिमा नक़्ज़िहिम मीसाक़हुम वकुफ्रिहिम बिआयातिल्लाहि वक़त्लिहिमुल अंबिया बिगैर हक़, यानी इनके साथ जो कुछ हुआ वो किस वजह से हुआ? इसलिए कि उन्होंने अपना आहद तोड़ा और अल्लाह ताला की आयतों का इनकार किया, अंबिया को नाहक कत्ल किया। वक़ौलिहिम क़ुलूबुना गुल्फ़, और ये कहा कि हमारे दिलों पे ग़िलाफ़ चढ़ा हुआ है। बल तबअ अल्लाह, बल्कि तबअ अल्लाहु, मोहर लगा दी। तबा का माना होता है मोहर लगाना। ये मतबूआत, किताबों वगैरह को छापते हैं तो खत वगैरह भी मतबू जब होती है तो उसके ऊपर वो मोहर लगा दी जाती है। मोहर लगा दी अल्लाह ताला ने अलैहा, उनके दिलों पर, बिकुफ्रिहिम, उनके कुफर की वजह से, फला युमिनूना, तो वो ईमान नहीं लाएंगे, इल्ला कलीला, मगर बहुत थोड़े। ठीक है, तो ये इन आयात का तर्जुमा है।
तो हकीकत ये है कि उनके कुफर की वजह से अल्लाह ताला ने उनके दिलों पे मोहर लगा दी है, इसलिए वो थोड़ी सी बातों के अलावा किसी बात पे ईमान नहीं लाते। उम्मीद करता हूँ ये तर्जुमा समझ में आ गया होगा सबको। गुज़िश्ता आयात में अल्लाह ताला ने अपने नबियों और रसूलों के दरमियान तफरीक करने वालों की मजम्मत बयान फरमाई और वाज़े फरमाया कि अल्लाह ताला के बाज़ अम्बिया पे ईमान लाना और बाज़ पे ईमान न लाना ये खालिश कुफर है, क्योंकि किसी एक नबी का भी इनकार करना ये ऐसे ही है गोया कि तमाम अम्बिया का इनकार किया। मुशरिकीन तो वैसे ही अम्बिया को नहीं मानते थे, वो तो मुतलकन इनकार की वजह से काफिर है, और तौहीद का भी इनकार किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनकार किया। अलबत्ता इन आयात में अल्लाह ताला ने इत्तिकादी मुनाफिकों का जिक्र किया, यानी ज़ाहिरी तौर पे तो तौहीद और रिसालत का इकरार करते हैं, लेकिन दिल जो है वो कुफर से भरे होते हैं, तो उनको उनके बुरे अंजाम से खबरदार किया। और मदीना तैयबा में चूंकि यहूदियों की अक्सरियत थी, तो वो अंबिया और रसूलों के दरमियान तफरीक करते थे। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद न तो ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को तस्लीम किया और न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए। चुनांचे उनमें से बाज़ मुतासिब जो यहूदी थे, वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत बेहुदा किस्म के सवाल भी करते थे। काब बिन अशरफ उनमें पेश होता था, बड़ा जालिम और सूदखोर था। उन्होंने यहूदियों की एक जमात के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल फरमाई, यसअलुका अहलुल किताब, अहली किताब जो है, यहूदी जो है, नसारा जो है आपसे सवाल करते हैं, तुनज़्ज़िल अलैहिम किताबम मिनस समा, क्या आप उन पे आसमान से लिखी हुई किताब जो है वो नाजिल करें। असल में यहूदी ये मुतालबा करते थे कि वो कुरान मजीद के सबकन नुज़ूल पे ईमान नहीं रखते, बल्कि वो उसे अल्लाह ताला की किताब उस वक्त तस्लीम करेंगे जबकि ये पूरी की पूरी तहरीरी सूरत में आसमान से नाजिल हो। और वो अपने इस मुतालबे की हिमायत के तौर पे मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल भी पेश करते थे कि आपने कोहे तूर पे एतिकाफ किया, रोजे रखे, फिर अल्लाह ताला ने उन पे तख्तियों पे लिखी हुई तौरात नाजिल फरमाई। और इससे पहले जो सहाइफ थे जो मुख्तलिफ अम्बिया पे नाजिल हुई, तो उनके बारे में भी यही है कि वो भी तहरीरी शक्ल में नाजिल होती थी। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी यही मुतालबा किया कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी है तो आप पे पूरा कुरान मजीद एक बार नाजिल होना चाहिए। और ये उनका एतराज सिर्फ जिद और दुश्मनी की वजह से था। उनका ख्याल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इस सवाल का जवाब हमारी तसल्ली के मुताबिक नहीं देंगे, नहीं दे सकेंगे, तो आपके इनकार का जो है जवाब हमें मिल जाएगा और ईमान लाने से बच जाएंगे। सूरह बनी इसराइल में भी मौजूद है कि मुशरिकीन मक्का ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी किस्म के सवाल किए। उन्होंने चश्मों और बागात का मुतालबा किया, आसमान पे चढ़ जाने का मुतालबा किया, अल्लाह ताला और फरिश्ते उनके सामने लाने का मुतालबा किया, हत्ता कि उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारे लिए तो सोने का घर होना चाहिए और ये कि आप आसमान पे चढ़ जाए। वलन नुमिन लिरुक़िय्यिका हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़रअहु, हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि आप आसमान से किताब न ले आए जैसे हम खुद पढ़े। और वो ये भी कहते थे कि आप दावा करते हैं कि आप पे वही नाजिल होती है, तो ये वही या किताब हम पे क्यों नाजिल नहीं होती। अगर हम पे कोई फरिश्ता उतरे तो उसकी बात सुन के हम आपकी तस्दीक कर देंगे। तो बहरहाल मदीने की यहूदियों ने भी आप पर इस किस्म के बेहुदा सवाल जो है वो किए ताकि ना आप उनका जवाब दे सके और ना वो आप पे ईमान ले आए। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों के इस सवाल के जवाब में तसल्ली दी है
कि उनका एतराज जिद और हठधर्मी पे मबनी है। अगर किसी शख्स को कोई गलत फहमी हो या वो वाकई किसी चीज को समझना चाहे तो उसे मतलूबा तालीम दी जा सकती है, लेकिन जिस शख्स का सवाल ही इनाद की वजह से हो वो कभी ईमान नहीं ला सकता। वो हर बात के जवाब में मजीद एतराज़ात करता चला जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोग आपसे किताब का मुतालबा करते हैं, लेकिन सवाल करना उनकी आदत कदीमा है। फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से इससे भी बड़े बड़े सवाल किए थे, बड़े बड़े मुतालबे किए थे। ये तो अपनी आदत से मजबूर है, इनकी ज़हनियत ही खराब है। मूसा अलैहिस्सलाम से बड़ा सवाल किया था, फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरा, कि हमें अल्लाह ताला सामने दिखा दे, इसके बगैर हम ईमान के लिए तैयार नहीं है। बड़ी गुस्ताखी की बात थी। ये बदबख्त अपने आप को इस काबिल समझते थे कि इस मादी दुनिया में इन आंखों के साथ अल्लाह ताला को देख सकते हैं, हालांकि इस दुनिया में अल्लाह ताला का दीदार नहीं हो सकता। खुद मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जब अल्लाह ताला से सवाल किया था, रब्बी अरीनी अंजुर इलैक, ए अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूं, तो अल्लाह ताला ने यही जवाब दिया, लन तरानी, कि आप मुझे नहीं देख सकते, वलकिन इंजुर इलल जबल, और फरमाया कि इस पहाड़ की तरफ देखो, फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ तरानी, अगर ये पहाड़ अपनी जगह पे कायम रह सका तो तुम भी मुझे देख सकोगे। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्कन व खर्र मूसा साइक़ा, फिर फरमाया कि इस पहाड़ की तरफ देखो, जब अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली पहाड़ पे डाली तो वो रेजा रेजा हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होके गिर पड़े। फिर आगे इन्नी तुब्तु इलैक, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर तौबा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद भी, इन्नकुम लन तरौ रब्बकुम हत्ता तमूतु, कि तुम मरने से पहले अपने रब को नहीं देख सकते। जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी, नया जहां पैदा होगा, नई कुव्वतें और सलाहियतें पैदा होंगी, तो वहां पे इंसान को अल्लाह ताला वो आंखें अता फरमाएगा, वो कुव्वत अता करेगा जिनसे वो दीदार इलाही कर सके। तो यही वजह है कि अहले हक इस बात पे मुत्तफिक है कि जन्नत में पहुंचने वाले अहले ईमान को अल्लाह ताला की रुयत नसीब होगी। अलबत्ता इस मसले में सिर्फ राफिजी और मुअतज़िला वगैरह जो है वो अल्लाह ताला की दीदार की मुनकिर है, बाकी सब मुत्तफिक है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए पैगंबर अलैहिस्सलाम, आपसे तो सिर्फ ये किताब लाने का मुतालबा कर रही हैं, ये बदबख्त तो मूसा अलैहिस्सलाम से दीदार इलाही का भी मुतालबा कर चुके हैं, और फिर इस मुतालबे के जवाब में साख़ज़तहुम साइक़तु बिज़ुल्मिहिम, इनकी सरकशी की वजह से, इनकी ज्यादती की वजह से, बेहुदा सवाल की वजह से इन पे बिजली गिरी, वो सब मर गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा जिंदगी बख्शी। फरमाया कि फिर यहूदियों ने एक और कभी काम किया, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को के मौजिज़ात को देखने के बावजूद बिछड़े की पूजा शुरू कर दी। तफसीलात पहले बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने उनका ये जुर्म भी माफ कर दिया। उनकी तौबा इस शर्त के साथ कबूल हुई, फ़क़्तुलू अनफुसकुम, कि एक दूसरे को कत्ल करो। उस वक्त तौबा की क्या कैफियत थी? एक दूसरे को कत्ल करना, कितनी सख्ती थी। चुनांचे बिछड़े की पूजा करने वाले गुनहगारों को बेगुनाह लोगों ने कत्ल किया। फिर वआतैना मूसा सुल्तान मुबीना, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को खुला गलबा अता किया, इक़्तिदार अता किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने बिछड़े को तोड़ फोड़ के जला दिया, जैसा कि दूसरी सूरत में मौजूद है। राख का कुछ हिस्सा पानी में बहा दिया और कुछ हिस्सा हवा में उड़ा दिया। बिछड़ा चूंकि शिर्क का शिआर था, इसीलिए मुकम्मल तौर पे उसे खत्म किया। और तकरीबन रिवायात में आता है 70,000 जो बिछड़े के पुजारी थे उन सबको कत्ल कर दिया गया। फिर आगे यहूदी तारीख के एक अहम वाक़े की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, वरफ़अना फ़ौक़हुम तुर बिमीसाक़िहिम, कि हमने उनसे आहद लेते वक्त
कोहे तूर पहाड़ जो है उनके सरों पे मुअल्लक कर दिया था। आजकल बाद जदीद मुफस्सिर जो है वो रफाना की गलत तावील करते हैं और कहते हैं कि पहाड़ को उठा के बनी इसराइल के सरों पे नहीं खड़ा किया गया था, बल्कि उन लोगों को पहाड़ के दामन में इस तरह खड़ा किया कि पहाड़ का कुछ हिस्सा उन पे झुका हुआ था। ये बिल्कुल गलत है। सूरह आराफ में आता है वइज़ नतक़नल जबल फ़ौक़हुम, कि जब हमने पहाड़ उनके सरों पे ला खड़ा किया। नतक़ का माना होता है उखाड़ना, मतलब साफ जाहिर है कि पहाड़ को अपनी जगह से उखाड़ के बनी इसराइल के ऊपर मुअल्लक कर दिया गया था और कहा गया था कि अगर नहीं मानते तो ये पहाड़ तुम्हारे ऊपर गिरा दिया जाएगा और तुम चकनाचूर हो जाओगे। यहाँ पे एक इश्काल फिर ये जहन में आता है, ये सवाल आता है कि दीन में तो जबर नहीं है, जायज नहीं है, ला इकराह फिद्दीन, अल्लाह ताला का वाज़ेह हुक्म है, तो यहूदियों को पहाड़ के खौफ से जबरदस्ती मनाया गया। इसका जवाब ये है कि जब बनी इसराइल को फिरौन से आज़ादी मिली और शहराए सीना में पहुंचे तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि हमारे लिए कोई कानून की किताब लाएं जिस पे हम अमल करें। तो अल्लाह ताला ने उनके कहने पे तौरात नाजिल फरमाई। तौरात का माना ही कानून है। जब किताब आ गई तो कहने लगे इसके अहकाम तो बड़े मुश्किल है, अब इन पे अमल नहीं कर सकेंगे। तो अल्लाह ताला ने उनसे आहद लिया था खुदू मा आतैनाकुम बिकुव्वा, कि जो अहकाम हमने दिए उन्हें मजबूती से पकड़ो, वज़कुरू मा फी, और जो कुछ उसमें है उसे याद करो, उन अहकाम पे अमल करो। तो अल्लाह ताला ने उन्हें खौफजदा इसलिए किया था कि एक चीज उन्होंने खुद मांग कर ली है और अब उस पर अमल करने से एराज कर रहे हैं। तो इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ला इकराह फिद्दीन का मतलब ये है कि किसी शख्स को दीन कबूल करने पे मजबूर नहीं किया जा सकता, यानी किसी शख्स को जबरदस्ती इस्लाम में दाखिल नहीं किया जा सकता। अलबत्ता तबलीग करो, अगर कोई मान जाता है तो ठीक है। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जो चाहे ईमान कबूल करे और जो चाहे काफिर ही रहे, उसे इस्लाम लाने पे मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर कुफर करेगा तो अल्लाह ताला के यहाँ सजा का मुस्तहिक होगा, लेकिन उसे जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इस्लाम लाने के बाद कोई शख्स इस्लाम के अहकाम की खिलाफ वर्जी करेगा तो वो जबर का मुस्तहिक होगा, उस पर हद जारी होगी, ताजीर लगेगी। तो दीन लाने के लिए जबर नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। अलबत्ता दीन का कानून तोड़ने पे जरूर जबर है, इकराह है। फिर फरमाया देखो कि ये कैसे बदाहत और बदतीनत लोग हैं। वकुलना लहुम उदखुलुल बाब सुज्जदा, हमने उनसे कहा कि दरवाजे में सजदा रेज होते हुए दाखिल होना, लेकिन उन्होंने इस हुक्म की भी खिलाफ वर्जी की। जब यहूदियों ने कहा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिद, कि हम एक ही खाने यानी मन्नो सलवा पे सब्र नहीं कर सकते, इसलिए हमारे लिए सब्जियां प्याज दाल वगैरह अपने रब से मुतालबा की दिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्हें कहो यहाँ पे जो बस्ती है अरीहा के नाम से वहां दाखिल हो जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारी अशिया मिल जाएंगी। अलबत्ता ये है कि शहर में दाखिल होते वक्त दो रकात नफल अदा करना, मुफस्सिरीन ने सुज्जतन के दो माना बयान किए कि झुक कर या सजदा करके। लेकिन ये ऐसे बदबख्त लोग हैं कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ झुकने की बजाय अकड़ के दाखिल हुए और ऐसा तरीका इख्तियार किया कि बिल्कुल झुकना ना पड़े। अल्लाह ताला ने फिर आगे ये भी फरमाया वकुलना लहुम ला तादू फिस्सब्त, कि हमने उन्हें कहा देखो हफ्ते के दिन तजावुज ना करना, हद से ज्यादा मत बढ़ना। उन्हें हुक्म था कि हफ्ते के दिन सिर्फ इबादत करनी है, कोई कारोबार तिजारत शिकार वगैरह बिल्कुल नहीं करना, हत्ता कि चूल्हे भी नहीं जलाना। लेकिन उन्होंने दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो तजावुज शुरू कर दिया। इसका जिक्र सूरह आराफ में मौजूद है। वस्अलहुम अनिल क़रया अल्लती कानत हादिरतल बहर, कि दरिया के किनारे उस बस्ती का हाल देखो कि उन्होंने अल्लाह के कानून को तोड़ा, फिर उन्हें कैसे ही सजा मिली। उनका किरदार ये था कि हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार तो नहीं करते थे, लेकिन उन्हें हौज में बंद कर लेते थे और फिर अगले दिन जमा शुदा तमाम मछलियां पकड़ लेते थे। बाद लोगों ने ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़े रहे।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद भी ला तर्तकिबू मर्तकबतिल यहूद, कि तुम उस जुर्म का, उस गुनाह का इर्तिकाब ना करना जिसका यहूदियों ने किया था। फतस्तहिल्लु महारिम अल्लाह बिअदनल हियल, के हीले बहाने से अल्लाह ताला की हराम की हुई चीजों को हलाल बनाते थे। आपने ये भी फरमाया लान अल्लाहुल यहूद, अल्लाह ताला यहूदियों पे लानत करे, अल्लाह ताला की लानत हो यहूदियों पे कि उन पे हलाल जानवर की चर्बी भी हराम थी, लेकिन वो लोग उसे फरोख्त करके रकम खा जाते थे और कहते थे कि हम हुक्म इलाही की तामील में चर्बी नहीं खाते। हालांकि जो चीज बिनफ्सी ही हराम हो उसकी कीमत भी हराम होती है, लेकिन उन्होंने हीले बहाने से हराम को हलाल बना लिया। तो मछली के शिकार के मुतालिक भी उन्होंने ऐसे ही हीला किया, जिसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह का अजाब आया, उनकी शक्लें जो है वो मसख हो गई, कुछ बंदर बन गए, कुछ खंजीर बन गए। अल्लाह ताला ने फरमाया भी ये ऐसी सजा थी पहले पारे में, नकाल लिमा बैन यदैहा व मा खल्फहा, मौजूदा और आइंदा आने वाले लोगों के लिए इबरत थी। फिर आगे फरमाया व अखज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा, कि हमने उनसे बहुत पक्का आहद लिया था कि वो अल्लाह ताला की अहकाम की पाबंदी करेंगे। फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम, लेकिन उस आहद को तोड़ देने की वजह से, व कुफ्रिहिम बिआयातिल्लाहि, और उनकी अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करने की वजह से, व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़, और अल्लाह के नबियों के नाहक कत्ल की वजह से, व क़ौलिहिम क़ुलूबुना गुल्फ़, और उनके इस कौल की वजह से कि उनके दिल बंद हो चुके हैं, दिलों पे ग़िलाफ़ है, अब उनमें कोई चीज़ दाखिल नहीं हो सकती। फरमाया कि यहूदियों की इन तमाम हरकत की वजह से बल तबअ अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम, और उनके कुफ्र की वजह से अल्लाह ताला ने उनके दिलों पे मोहर लगा दी। नाफरमानी कर कर के उनके दिल जो है वो स्याह हो चुके हैं, जंग जो है वो चढ़ चुका है। अब उनमें कोई चीज नहीं उतर सकती, वो मनमानी करते हैं, बुराई को बुराई नहीं समझते। लिहाजा खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने उनके दिलों पे मोहर लगा दी, ये कुफर में रासिख हो चुके हैं, अब ये सीधे रास्ते पे आने की सलाहियत उनमें नहीं है। अला युमिनून इल्ला कलीला, तो उनकी एक कलील तादाद ईमान लाती है और अक्सरियत जो है वो कुफर ही पे कायम रहती है। चुनांचे मदीने के अतराफ में जो यहूदी आबाद थे, 10 बड़े आलिम थे, उनमें से सिर्फ अब्दुल्ला बिन सलाम ईमान की दौलत से मुशर्रफ हुए, बाकी सब जो है बेईमान ही रहे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये 10 उलमा जो यहूदी है ईमान ले आते तो दुनिया में कोई यहूदी भी बाकी ना रहता, लेकिन ये लोग 1400 साल गुजरने के बावजूद वैसे के वैसे ही इनादी है, कुरान मजीद को अल्लाह ताला की किताब नहीं मानते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम नहीं करते। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है, ये लोग आपसे तरह तरह के मुतालबात करते हैं, आप घबराए नहीं, इससे पहले ये मूसा अलैहिस्सलाम से इससे भी बड़े मुतालबात कर चुके हैं। इनके कुफर, इनके सरकशी की वजह से इनके दिलों पे मोहर लग चुकी है और अब इनकी अक्सरियत जो है ईमान लाने के लिए तैयार नहीं होती। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें यहूद और नसारा के कबील जो कबीह रज़ाइल है, कबीह आदात है, उनसे हमारी हिफाजत फरमाए और हमें पक्का सच्चा मुसलमान बनाए, कुरान पे अमल करने वाला बनाए और हम सबको कुरान मजीद के अनवारात और बरक़ात से मुस्तफ़ीद फरमाए, दीन की तालीमात को सही तरीके से सीखने और दीगर अफराद तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।